directors from India and from international. We have Pramod Mahajan, sir. It is a privilege for me to honor the most deserving teachers in the form of a token of love from the foundation. I think it is a tremendous work which Center for Education Development Foundation or Global Talk Education Foundation is doing since last few years. Let me all inform you that this foundation basically is an assessment unit. We empower teachers, students through various trainings, workshops, and huge application counts. I can understand the talent and capability of teachers. It became very difficult. We have 3 rounds of selections and very tough job. But I must thank all the jury members for their extended support and the time which they have given us as teachers. I know every teacher is unique, but still we could find out of this hundreds. Let me all tell you, we were supposed to have a grand ceremony in Delhi on 6th September. And everyone knows this unprecedented times did not allow us to host this event on 6th September. So I thought that event is now postponed to December. We are getting a date. Only the venue will date to the selected 100 teachers from India. But now this I thought let be a virtual event. Everywhere teacher doing job, it may be during this corona times or before the pandemic. The teacher need acknowledgement, encouragement, appreciation. And this particular process is with this forum since last 6 years. In a regular basis, in a year, we are honoring around 400 to 500 educationists. Feel proud that the mission which Center for Education Development has taken up, now it has come up with Global Talk Education Foundation. We have also collaborated with Global Talk Education Canada. We are in collaboration with Aesthetic International, which is an international forum. We have collaborated with GAMA Inc. Dr. Asif Mahmood Karim. We just with GAMA. We have associated with Microsoft team recently. Dear teachers, why I'm telling all these things? Because you are getting a wonderful platform. Be there. You are a part and parcel of this particular forum now. You'll be getting a lot of benefits. Training, assessment unit, training, accreditation unit empowers you. It brings you a lot of new methodologies, technologies, new practices, which you can implement those things in your classroom situations and you can become a pro. We are now registered under MSME Government of India. The training and all things will now be certified by the registered certificates. So we are striving hard, and the entire board of directors, the entire team, those who are working nationally and internationally, those who are helping all around in every aspect to develop the skills of the teachers, I must thank them. And it is with everyone's support, I think we could come to this day is possible. We are all here today to witness the grand ceremony, celebrate those teachers, honor, which I think every was waiting since long.
all the board of directors and the guest speakers, jury members, and above all the participants, all the teachers. Those are wonderfully, I think, they have gone through three series of competitions, and I must say that you are all proud, either of this country or wherever you belong to. Keep up this momentum. Go ahead with this. Once again, I wish you all a tremendous journey which you have carried on. Keep it up, that do a good job, perform well in the future, and be a proud winner of these laurels. It's not only an award won in the global talk, but we want that each become national award also from the President. These wishes, I convey my regards to all of you watching here, those who are watching through the Facebook, the other social medias, and I believe this forum is doing well. Let us hope that this has been blessed by each and every education. Let us all contribute to the betterment of this. Thank you very much. Jai. Thank you so much, sir. Your initiatives have always been remarkable, commendable, and applaudable. And really, it's so inspirational for all of us. To be in your child's memories tomorrow, you need to be in their lives today. There are many who really make a difference in the lives of the people to whom they connect. To add on to the award ceremony of today, we have such illustrious and phenomenal personalities amongst us whose benign presence has graced the occasion and raised the virtual ambience of the Teachers Concert Global Teachers Award 2020. At the outset, I'll take this prestigious opportunity to welcome Dr. Abdullah Rashid, Minister of State for Education, Maldives. Before I call Sir for his inspiring words, I would like to present a small brief about him. Dr. Abdullah Rashid Ahmed, Minister of State for Education, Maldives. He is a doctorate in instructional leadership and has been awarded as Best Debater Award by Public Service Media, Voice of Maldives, Principal of Year Award by Ministry of Education, Maldives, President's Award by President Office, Dean's Role of Excellence by University of Tasmania, and Academic Excellence Award by Binary University of, and many more other awards to his credit as well. He has been the President of Advisory Board in Maldives National University, a board member in National Drug Agency, and principal in 5 reputed schools as well. He has been the Director of International Affairs and Senior Lecturers in MI College, Maldives. He has been a writer and author too, and have many writings and a book to his credit as well. Dr. Abdullah Rashid, Minister of State, Ministry of Education, Maldives. Sir, we welcome you wholeheartedly. Now we move on to our next awardee, Seema Gangred from Khandwa. Seema, good evening. Congrats. Yes, Seema, please carry on. So much, ma'am. Thanks a lot for acknowledging the effort of educators during this pandemic situation. It's a moral booster. So I'm especially thankful to Dr. Priyadarsini Nayak sir for taking initiative and sincere effort for all educators and appreciating their contribution and giving us honor through this international platform. A very humble thanks to CED Foundation for through full gesture towards teaching fraternity. I feel optimistic and blessed, ma'am. I'm really honored to be the part of CED Foundation. My heartiest congratulations to all the prestigious winning award teachers. I'm thankful to my own children, my family members, my principal, and especially my parents, those who always pushed me to be like a good teacher. My students, those who are always saying me, ma'am, we are blessed to be a teacher like you. So thank you so much everyone, and a very happiest Teachers Day to all. Thank you, ma'am.
Artist, congratulations, Seema, and happiest Teachers' Day to you all awardees, because today is a fortunate day for all of you. After seeing so many people feeling happy for today's occasion, I am feeling happy. You know, it's contagious. Smile is always contagious. So let's move on to our next awardee, Miraj Fatima Athia from Abu Dhabi Indian School, Abu Dhabi. हेलो दोस्तों, माय सिटी लाइट पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित पूरे मध्य प्रदेश में चुने गए एकमात्र टीचर सीमा गंगराड़े मैम, जिन्होंने हमारे खंडवा शहर का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। ये हमारे खंडवा शहर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सीमा गंगराड़े मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको ये जो ग्लोबल टीचर अवार्ड जो मिला है, इसे लेकर आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत ही रोमांचित हूँ, बहुत ज्यादा खुशी है मुझे, क्योंकि मुझे ये मेरे जीवन का एक सपना था। क्योंकि हर व्यक्ति का यही एक उद्देश्य होता है हर प्रोफेशन में कि हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिले, एक एप्रिसिएशन मिले। सभी को यही लगता है कि हमारी एक पहचान बननी चाहिए। तो मेरा भी, सभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं हमेशा से मुझे कहते थे कि मैम यू आर दी बेस्ट, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपका पढ़ाया हुआ हमें हमेशा याद रहता है। तो मेरे दिल में कि ये चीज रहती थी कि हाँ, बच्चे तो मुझे कह रहे हैं, लेकिन ये चीज सबके सामने भी आनी चाहिए। तो जब मुझे ये मौका मिला तो मेरे दिल ने एकदम कहा कि बस ये मुझे मिलना चाहिए, और ये मुझे मिल गया। खुश हूँ मैं, और आज सभी दूर लोग बधाई दे रहे हैं फोन करके और मिल करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपको माय सिटी लाइट से भी बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ जी मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है, ये क्या है और ये आपको कैसे मिला और इसकी प्रोसेस क्या थी? हाँ जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत से लोगों को पता नहीं है अभी, ये एक प्रतिष्ठित फाउंडेशन है, CED फाउंडेशन एंड ग्लोबल टॉक एजुकेशन फोरम। ये इंडिया की एक ट्रेनिंग और असेसमेंट यूनिट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के MSME के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। और इसमें इंडिया के अलावा कनाडा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईस्ट अफ्रीका, सिंगापुर, थाईलैंड, मेक्सिको, जम्मू कश्मीर और इसके अलावा भी और कई देश हैं। इनके एजुकेशनलिस्ट, एजुकेशन लीडर्स, मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स और ग्लोबल टॉक एजुकेशन के CEO, प्रेसिडेंट्स शामिल हैं जी। तो इसका उद्देश्य जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाना और विद्यार्थियों को कोरोना काल में किस तरह से उच्च और नवीन शिक्षा किस तरह से प्रदान की जाए, इस पर विचार होता है, इस पर नए इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। इसके अलावा हाउ टू डेवलप और बिल्ड सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस इन टाइम ऑफ वर्चुअल लर्निंग, जैसे बच्चों को वास्तविक शिक्षा के साथ साथ किस तरह से उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करें और किस तरह से अर्ली चाइल्डहुड और उनका बच्चों का किस तरह से केयर किया जा सकता है, उनके एजुकेशन में किस तरह से एंग्री पेरेंट्स को हैंडल किया जा सकता है। और इसका उद्देश्य उन एजुकेटर्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिलाना है जो अपने कार्य क्षेत्र में समर्पित हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लिए और उनकी समता और वातावरण, खुशी के वातावरण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए नए नए प्रयास करते हैं, और जो शिक्षा जगत में इनोवेटिव और नवीन प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो इनका एक उद्देश्य उन सारे एजुकेटर्स को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी दिलाना है। जी, ओके मैम। और मैम, इसी के साथ में आपने कौन कौन सा सर्टिफिकेट अर्जित किए हैं? हाँ जी, तो ये मैं एक तरह से इस बड़े फोरम से जुड़ी हुई हूँ, CED और ग्लोबल टॉक एजुकेशन फोरम। ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, मैं समझती हूँ, और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैं अभी जुलाई मंथ में ही इससे जुड़ी हूँ। तो मैं कई नेशनल और इंटरनेशनल वेबिनार्स अटेंड करती रहती हूँ, जिसमें बच्चों को किस तरह से अच्छे एजुकेशन हम दे सकते हैं, हम अपनी टीचिंग में किस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। मेरा खास उद्देश्य ये रहता है कि मैं नया क्या सीखूं,
जिससे मैं अपने प्रोफेशन को और बेहतर और अच्छा बना सकूं। तो इसी उद्देश्य से मैं कई नेशनल वेबिनार्स अटेंड कर रही हूं, तो जिसमें मैंने कई सारे सर्टिफिकेट्स अर्जित किए हैं, जैसे हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस इन स्टूडेंट्स, हाउ टू डेवलप रीडिंग हैबिट्स इन देम, एंड हाउ टू गिव स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, एंड हाउ टू solve the students problem in school। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी मैंने वेबिनार्स अटेंड किए हैं, और किस तरह से कोरोना काल में, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सभी ऑनलाइन टीचिंग दे रहे हैं, तो हम डिजिटल रिसोर्सेज को अपने एजुकेशन में किस तरह से बेहतर तरीके से शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे वेबिनार्स मैंने अटेंड किए हैं और उनके सर्टिफिकेट्स भी मुझे मिले हैं। जी जी ओके मैम। मैम ये प्रोग्राम जो था ग्लोबल टीचर अवार्ड का, मैम ये कहाँ आयोजित किया गया था, और इसमें जो आपको जो सम्मान से आपको सम्मानित किया गया है, ये आपको किनके द्वारा मिला है? जी, ये जो प्रोग्राम है ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। अभी कोरोना काल नहीं होता तो ये आयोजन वहीं से मुझे मिलने वाला था, पर ये नहीं संभव हो सका, इसलिए ऑनलाइन ही इसको आयोजित किया गया था। तो ये पूरे देश के विभिन्न राज्यों से, और जैसे पंजाब, बेंगलोर, मुंबई, सारे ही भारत के पूरे राज्यों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा विभिन्न विदेश के राज्यों से, जैसे कोयम्बटूर, इस्तांबुल, टर्की, अबू धाबी, दुबई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे राज्यों से भी सारे एजुकेटर्स शामिल थे इसमें। ये प्रोग्राम दिल्ली से हुआ, और ये मुझे हमारे मालदीव के एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर अब्दुल्ला रशीद, और ग्लोबल टॉक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं कनाडा, मिस्टर जेम्स मार्टिन, इनके द्वारा मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इसमें मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मिला है। इसके अलावा मुझे बेस्ट ग्लोबल टीचर अवार्ड ट्रॉफी भी मिली है, in recognition of dedication and efforts of contribution to education in social welfare and adolescence awareness through innovative practice। जी सर। ओके, अच्छा मैम, आपके साथ जैसे ये जो प्रोग्राम जो हुआ था, तो इसमें आपके साथ ऑल वर्ल्ड के लोग थे, तो इस प्रोग्राम में आपके साथ कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मैम? प्रतियोगिता जो थी ये, इसमें कोई भी शामिल हो सकता था, इंडिया के भी पूरे और विश्व के पूरे देशों के। तो टोटल इसमें 3000 से ज्यादा हमारे प्रतियोगी शामिल थे, जिसमें मैं शॉर्टलिस्टेड हुई हूँ। पहले पूरे विश्व के 3000 कॉम्पिटिटर्स में से मैं शॉर्टलिस्टेड हुई हूँ, और उसके बाद हमारा ये कंपटीशन 3 राउंड में संपन्न हुआ, जिसमें पहले राउंड में हमारी लिखित प्रतियोगिता थी, और इसके अलावा जो हमारे ग्लोबल टॉक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं और FCIGI, ये एक एजुकेशन CBSE का ही एक ग्रुप है, इसके बांग्लादेश के प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ महबूद करीम, और CBSE स्कूल्स के मिडिल ईस्ट के मेंटोर हैं मिस्टर टी राम कुमार, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। और इसके अलावा एक लिखित परीक्षा हुई थी हमारी, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को मैंने अटेंड किया। तो उसके बाद पहले राउंड में मेरा क्लियर हुआ, और फिर सेकेंड राउंड का इंटरव्यू हुआ, जिसमें कुछ और प्रतिष्ठित लोगों ने, विदेश के जो एजुकेशन लीडर्स हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया। उसमें कई सारे क्वेश्चंस पूछे, जैसे आर यू अ टीचर बाय चॉइस और बाय चांस। इसके अलावा व्हाट इनोवेटिव थिंग्स यू अप्लाई विथ योर स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग योर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। आप अपने विषय को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टूडेंट्स के साथ क्या नई नई चीजें आप इनोवेट करती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि व्हाट मेक्स यू प्रोग्रेसिव टीचर। आप अपने आप को प्रोग्रेसिव टीचर बनाने के लिए क्या करती हैं, और आपने ऐसा क्या किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, जिनके उत्तर मैंने बहुत अच्छे से दिए, और वे लोग बहुत इम्प्रेस थे। जी मैम, वाकई ये बहुत ही अच्छी बात है कि पूरे विश्व से मतलब 3000 लोगों में से आप 100 बेस्ट टीचरों से अवार्ड में चुने गए। ये वाकई हमारे खंडवा शहर के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, जो आप खंडवा शहर का नाम पूरे विश्व में आपने रोशन किया। जी सर। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, द विल टू विन इज इम्पोर्टेंट बट द विल टू प्रिपेयर इज वाइटल। मतलब
कि जीत तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु जी। जीत की जो तैयारी है वह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें हमेशा अपने आप को बेटर दी बेस्ट करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। आप अपने आप को ही इम्प्रूव करने के लिए समय देते रहिए ताकि आपके पास कोई और कामों के लिए समय ना बचे। तो जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, सिटी लाइन का, जी। कि आपने मुझे इस तरह से मौका दिया जी। इस चीज को बताने के लिए। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत बधाई आपको भी, आपके परिवार को भी कि आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।